Today we will be starting the subject data structure. Data structure is the combination of two words. One is data and the other one is structure. Structure means organization. So the data structure will be the organization of data in computer memory. Dear students, you know that we have two different types of memories. One is called primary memory and the other one is called secondary memory. Primary memory is also called temporary memory, whereas secondary memory is called permanent memory. So, the organization of data in primary memory or temporary memory is related with the subject of data structure, and the organization of data in secondary memory or permanent memory comes under the umbrella of database. This means that with the difference of two memories, we have two different subjects of the computer science. One is data structure that you will be studying in this semester, and the other subject will be database that you will be studying in the next semester. This means that we can say that data structure deals with how data shall be organized in computer memory, where memory will be the primary memory. Dear students, you have studied in the previous semesters that primary memory is the combination of various cells, and in these cells you store the data. So, the data structure will be related with the temporary memory. It means we will be dealing with the organization of data in these cells, that is, how we will store data in this memory and how we will how different computer applications will retrieve data from primary memory or temporary memory. So, the data structure deals with the organization of data in temporary memory or primary memory. Every computer application or software operates on the data. So this means that the organization of data is very important for every computer application or software. Every computer application or software either stores data in memory or it retrieves data from the memory. So, computer applications or softwares largely depend upon the data, and every computer application or software is expected to store or retrieve data from the memory. Here we are discussing about the primary memory. Dear students, storage and retrieval are largely dependent upon each other. So you cannot isolate storage from the retrieval or retrieval from the storage. अगर आप efficiently memory में data को store करेंगे तो फिर retrieve भी efficiently करेंगे. इसकी मैं आपको example इस तरह दे सकता हूँ, जैसा आप अपनी wardrobe में अपने कपड़ों को अच्छे तरीके से organize करके तमाम चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर रखेंगे तो पहनने के वक्त जो चीज़ भी आपने उठानी है आप क्विकली या ऑप्टिमली उसको क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं. और अगर आप अनऑर्गेनाइज तरीके से अपने कपड़ों को वार्डरोब में या अलमारी में फेंकते रहें तो पहनने के वक्त कोई चीज़ आपको प्रॉपर तरीके से रिट्रीव नहीं होगी या आपको एक्सेस करने में डिफ़िकल्टी होगी. अगर आपको पैंट मिलेगी तो उसके साथ मैचिंग शर्ट नहीं मिल पाएगी, और शर्ट मिलेगी तो उसके साथ मैचिंग आपको पैंट नहीं मिलेगी, तो आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी. तो इसलिए मैंने कहा है कि स्टोरेज, एक एग्जांपल के साथ आपको समझाया है कि स्टोरेज और रिट्रीवल किस तरह एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. आप स्टोरेज को और रिट्रीवल को आपस में एक दूसरे से आइसोलेट नहीं कर सकते, बल्कि बाज़ कंप्यूटर के एक्सपर्ट्स का ये मानना है
कि अगर हमारे पास डिक्शनरी में, इंग्लिश डिक्शनरी में कोई एक वर्ड होता तो हम स्टोरेज या रिट्रीवल के लिए एक सिंगल वर्ड यूज करते। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से लार्जली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। So we can say that the data structure deals with the optimal techniques for storage and retrieval of data in computer memory, and here we are discussing about the primary memory। तो हम कह सकते हैं कि जो डेटा स्ट्रक्चर है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि कंप्यूटर मेमोरी में यानी प्राइमरी मेमोरी में हम किस तरीके से ऑप्टिमली डेटा को स्टोर करें या ऑप्टिमली डेटा को रिट्रीव करें। तो ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड यहाँ पर हम वेरियस टेक्निक्स को स्टडी करेंगे। उन टेक्निक्स के थ्रू आप डेटा को स्टोर करेंगे या डेटा को क्या करेंगे, कंप्यूटर मेमोरी से क्या करेंगे, रिट्रीव करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर and the other one is called non-linear data structure. In linear data structure, we store data in consecutive memory locations. Whereas in non-linear data structure, we store the data in upside down fashion or in upside down memory locations. We can also say that in non-linear data structure, we store data in non-consecutive memory locations. In linear data structure, usually data is retrieved in some proper order. आप किसी एक ऑर्डर जैसा आप एक एग्जांपल ले लें, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर है, वन आफ्टर अनदर सीक्वेंशियल ऑर्डर जिसे आप कहते हैं, एक खास ऑर्डर में आप क्या करेंगे, डेटा को क्या करेंगे, रिट्रीव करेंगे। There are various operations that are performed in the data structure. So our next topic is data structure operations. Here are some operations that we perform on the data. One is traversing, searching, insertion, sorting, merging. Traversing means accessing the data from the memory locations. This is called traversing. Searching, when you find an exact location of data, when you find the exact location of any data in computer memory, this operation is called searching. Insertion mean adding data. Insertion mean adding data in list. कि जब आप किसी लिस्ट में डेटा को ऐड करते हैं, दिस इज कॉल्ड इंसर्शन। वेयर एज डिलीशन, दिस इज अनदर ऑपरेशन, दिस डील्स विथ रिमूविंग डेटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग लिस्ट। जब आप किसी लिस्ट से डेटा को रिमूव करते हैं, then that operation is called deletion, और जब आप डेटा को ऐड करते हैं किसी existing लिस्ट के अंदर, that is called insertion। आप लिस्ट के स्टार्ट में भी इंसर्ट कर सकते हैं, लिस्ट के एंड पर भी इंसर्ट कर सकते हैं, लिस्ट में कहीं मिड में भी इंसर्ट कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन पर आप इंसर्ट करते हैं, ऐड करते हैं, that operation is called insertion। Sorting means giving some proper order to data। आपके पास लिस्ट में डेटा है, आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको एक प्रॉपर ऑर्डर देते हैं, दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड सॉर्टिंग। एंड द लास्ट वन इज मर्जिंग। आपके पास दो लिस्ट हैं, सिमिलर टाइप की लिस्ट हैं, और उन सिमिलर टाइप की जो लिस्ट का डेटा है उसको आप कंबाइन करके एक तीसरी लिस्ट में लेकर आते हैं, दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड मर्जिंग। Our next topic is algorithm। देखिए अभी हमने पढ़ा है कि डेटा स्ट्रक्चर जो है उन टेक्निक्स के साथ डील करता है जिसके थ्रू आप डेटा को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे या रिट्रीव करेंगे फ्रॉम कंप्यूटर मेमोरी। तो जब आप टेक्निक्स की बात करते हैं तो टेक्निक्स को लिखने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए हमें कोई मैकेनिज्म यूज़ करना होगा, तो उसको स्टडी करने के लिए फिर हम एक टॉपिक अभी
डिस्कस करते हैं, डेट इज कॉल्ड दी एल्गोरिथम. Algorithm is a step-by-step approach to solve a particular problem in computer. This is called algorithm. A step-by-step approach to solve a particular problem in computer is called algorithm. यानी किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने के लिए आप जब उसको स्टेप वाइज डिस्क्राइब करते हैं, लिखते हैं, then that is called the algorithm. यानी फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में क्या एक्शन होगा, कंप्यूटर क्या एक्शन परफॉर्म करेगा और आखिर में उसका रिजल्ट क्या आएगा. जब आप तमाम स्टेप्स को डिस्क्राइब करते हैं, उसको उस टेक्निक के लिए आप स्टेप्स लिखते हैं, देन दैट इज कॉल्ड द एल्गोरिथम. एल्गोरिथम कैन आल्सो बी डिफाइंड एज unambiguous process to solve a particular problem. This can also be defined as unambiguous process to solve a particular problem. Unambiguous mean यानी कोई भी एल्गोरिथम जो है वो ambiguous नहीं होना चाहिए. जो भी स्टेप्स हैं वो unambiguous होनी चाहिए, उनमें क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर कट हमें लाइन ऑफ एक्शन का पता होना चाहिए कि क्या स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिलेगा. It can also be defined as the sequence of computational steps that transform input to output. Computational steps mean the steps that are performed by the computer to transform data, input data into output data. तो किसी भी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए जो कंप्यूटर स्टेप्स परफॉर्म करते हैं, उन स्टेप्स को जब आप वन बाय वन एक प्रॉपर ऑर्डर में या सीक्वेंस में जब आप लिखते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड द एल्गोरिथम. एल्गोरिथम एक्ट्स एज ए टूल. इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज एल्गोरिथम एक्ट्स एज ए टूल टू सॉल्व अ वेल डिफाइंड स्पेसिफाइड कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम. कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम मीन द प्रॉब्लम दैट विल बी सॉल्व्ड बाय कंप्यूटर. दैट इज कॉल्ड द कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम. तो वो जो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, वेल स्पेसिफाइड होना चाहिए. आपने उसको प्रॉपरली स्पेसिफाई किया हो. यानी स्पेसिफिकेशन का मकसद ये है कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स का पता होना चाहिए कि आप उस प्रॉब्लम में क्या आप ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं, और फिर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो आप स्टेप्स परफॉर्म करेंगे, देन दैट इज कॉल्ड द एल्गोरिथम. एल्गोरिथम can be written in two different formats. One is called formal and the other one is called informal. जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं formal algorithms and informal algorithms. In formal algorithms, we follow some pseudo language or we follow some rules to write algorithm. Whereas in informal algorithms, we use the natural languages like English, Urdu, Pashto. आप किसी भी नेचुरल लैंग्वेज, लेकिन आप अपने सब्जेक्ट में, क्योंकि इंग्लिश हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है और तमाम लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं इजीली, तो हम इंग्लिश में स्टेप्स को लिखेंगे. तो जब आप प्लेन इंग्लिश में आप उसको नेचुरल लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज में जब आप स्टेप्स को लिखते हैं बगैर किसी रूल्स को फॉलो किए, किसी फॉर्मेलिटी को फॉलो किए, आप लिखते हैं स्टेप नंबर 1 और आप इंग्लिश में वो स्टेप डिस्क्राइब करते हैं, फिर स्टेप नंबर 2 इंग्लिश में आप उसको डिस्क्राइब करते हैं, then that style of writing the algorithm is called informal. जबकि फॉर्मल एल्गोरिथम्स में आप कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे, किसी खास एक सूडो लैंग्वेज को, यानी एल्गोरिथम्स की अपनी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होगी, उस लैंग्वेज के स्पेसिफिक रिजर्व वर्ड्स होंगे, उन वर्ड्स को यूज करके आप एल्गोरिथम को लिखेंगे. यानी स्टेप्स आप जब डिस्क्राइब करेंगे तो आपको वो रिजर्व वर्ड्स या वो सूडो लैंग्वेज यूज करनी होगी, और सम रूल्स यू विल हैव टू फॉलो द सम रूल्स. आप कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए एक स्पेसिफिक स्टाइल को, यानी ये जो रूल्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये दीज रूल्स आर रिलेटेड विद द स्टाइल. यानी आप उस स्टाइल के लिए आप कुछ सर्टेन रूल्स को फॉलो करेंगे, तब उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज द फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग द. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्राइटेरिया टू राइट द एल्गोरिथम्स. If you are writing formal algorithm or informal algorithm,
then in both cases you will have to follow certain criteria to write the algorithms. These criteria are input, output, definiteness, finiteness, efficient, concise and compact. First of all, we discuss the input. Input means every algorithm is expected to receive certain input values. That is, every algorithm shall receive some input from the user. कोई एल्गोरिथम ऐसा नहीं होता जिसमें आप कोई इनपुट न दे रहे हो, कुछ ना कुछ आपने मतलब उसको इनपुट देना होगा. Second is the output. Every algorithm shall produce certain output. Every algorithm is expected to produce some output. There is no algorithm without any output. अगर output नहीं है तो फिर हम algorithm क्यों लिख रहे हैं? हर algorithm किसी output को achieve करने के लिए, किसी objective को achieve करने के लिए हम लिखते हैं. तो output का ताल्लुक उसी ऑब्जेक्टिव से है कि यानी आप किसी ऑब्जेक्टिव या किसी एक रिजल्ट तक या किसी गोल तक पहुंचने के लिए जब आप स्टेप्स को लिखते हैं तो इसका ताल्लुक किस चीज़ के साथ होगा? आउटपुट. तो कोई एल्गोरिथम विदाउट आउटपुट नहीं हो सकता. डेफिनेटनेस मींस ईच इंस्ट्रक्शन इन द एल्गोरिथम शैल बी अनएम्बिगुअस. इट शैल बी वेरी मच क्लियर. हर इंस्ट्रक्शन जो आप लिखेंगे एल्गोरिथम में that shall be unambiguous. Unambiguous का मतलब क्या है कि किसी इंस्ट्रक्शन के मल्टीपल मीनिंग्स ना हो. ये ना हो कि जब हम एल्गोरिथम को कंप्यूटर पर इंप्लीमेंट करें तो उस इंस्ट्रक्शन के मल्टीपल मीनिंग्स ड्राइव हो रहे हों जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए और कंप्यूटर को वो आउटपुट अचीव करने में डिफिकल्टी फील हो. तो लिहाजा जो भी आप इंस्ट्रक्शन लिखेंगे उसको इम्प्लीमेंट यानी उसकी इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर जो अगर कोई एम्बिग्विटी का एलिमेंट है तो उसको आप रिमूव करेंगे. हर इंस्ट्रक्शन को अनएम्बिगुअस और क्लियरली आप जो है लिखेंगे ताकि उसके सिंगल मीनिंग ड्राइव हो रहे हो. फाइनाइटनेस. एवरी एल्गोरिथम शैल टर्मिनेट वेल इन टाइम. यानी कोई एल्गोरिथम ये ना हो कि वो टर्मिनेट ही ना हो, बस वो कंप्यूटर जो है उस एल्गोरिथम के ऊपर क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है इनफाइनाइट लूप में फंस गया है और वो एल्गोरिथम कभी टर्मिनेट ही नहीं हो रहा. दिस इज अ क्राइम. और लिहाजा हम कहते हैं कि जो भी एल्गोरिथम हो उसके अंदर क्या होना चाहिए? फाइनाइटनेस का एलिमेंट होना चाहिए, यानी किसी न किसी स्टेज पर जाके वो टर्मिनेट हो जाए. एफिशिएंट. एफिशिएंट एल्गोरिथम कौन सा होगा? The algorithm that accomplish the task well in time. दो चीजें मैंने यहां पर लिखी है, well in time and without wasting the memory locations. यानी आपने अननेसेसरी मेमोरी लोकेशंस को ऑक्युपाई नहीं करना. वेस्टेज का मतलब यहां पर यह है कि जब आपकी मेमोरी जो है अननेसेसरी ऑक्युपाई हो जाए तो उसको हम कहेंगे कि ये मेमोरी क्या हो रही है? वेस्ट हो रही है. तो लिहाजा जो देखिए मैंने शुरू में वर्ड यूज किया था ऑप्टिमली, यानी आपने मेमोरी लोकेशंस को क्या करना है? ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है. यानी कम से कम मेमोरी लोकेशंस को यूज करके आपने ऑब्जेक्टिव या आउटपुट अचीव करना है. मेमोरी लोकेशंस अननेसेसरी आपने वेस्ट नहीं करनी. जितनी आप ज्यादा मेमोरी को वेस्ट करेंगे उस एल्गोरिथम को हम कभी भी एफिशिएंट एल्गोरिथम नहीं कह सकते. और दूसरा मैंने यहाँ पर उसको टाइम के साथ को रिलेट किया है, यानी एल्गोरिथम जो है टाइमली भी, टाइम के लिहाज से इन टर्म्स ऑफ टाइम भी एफिशिएंट होना चाहिए. यानी अगर एक एल्गोरिथम है वो 10 सेकंड्स में आउटपुट दे रहा है, सेम आउटपुट दे रहा है, और दूसरा एल्गोरिथम ए 10 सेकंड्स में दे रहा है और दूसरा कोई एल्गोरिथम है बी जो सेम आउटपुट जो है लेट्स सपोज 10 माइक्रोसेकंड एंड 8 माइक्रोसेकंड्स में वो दे रहा है, तो एफिशिएंट वो होगा जो सेम आउटपुट 8 माइक्रोसेकंड्स में आपको प्रोड्यूस कर रही है, यानी कम टाइम कंज्यूम करके. मैंने एक छोटी सी एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है कि टाइम के लिहाज से भी वो ऑप्टिमल होना चाहिए और मेमोरी लोकेशंस के यूजेज के लिहाज से भी वो एल्गोरिथम क्या होना चाहिए? ऑप्टिमल होना चाहिए. तो उस एल्गोरिथम को हम क्या कहेंगे? दैट एल्गोरिथम इज कॉल्ड द एफिशिएंट एल्गोरिथम.
And the next criteria is concise and compact. Conciseness and compactness is basically related with we shall not write or we shall not include unnecessary steps in the algorithm. यानी आप एल्गोरिदम लिख रहे हैं तो उसमें आप कुछ स्टेप्स ऐसे लिख रहे हैं कि वो रिडंडेंट हैं, यानी उनको न भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अननेसेसरी स्टेप्स लिखने से आप क्या करें, अवॉइड करें। जितना आपका एल्गोरिदम कंसाइज होगा उतनी उसकी वेरिफिकेशन इजी होगी। यानी इन टर्म्स ऑफ वेरिफिकेशन, जब आप किसी भी एल्गोरिथम को वेरीफाई करना चाहते हैं या किसी एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं फिर आगे फर्दर आप, तो फिर वहां पर जो कंसाइजनेस है या कंपैक्टनेस का एलिमेंट है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप अननेसेसरी अगर स्टेप्स लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम भी अननेसेसरी लेंथी होगा, तो लिहाजा इसको अवॉइड करना चाहिए। तो जो क्राइटेरिया है उसमें कंसाइजनेस और कंपैक्टनेस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अननेसेसरी स्टेप्स को आप कभी भी एल्गोरिदम के अंदर इंक्लूड ना करें। अगर आप अननेसेसरी स्टेप्स को इंक्लूड करेंगे तो आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे वेरिफिकेशन ऑफ एल्गोरिथम, तो फिर वेरिफिकेशन में काफ़ी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं या अननेसेसरी हमारा टाइम वेस्ट होता है किसी भी एल्गोरिथम को वेरीफाई करने में। और जब आप किसी एल्गोरिथम को किसी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करते हैं तो आपने अगर अननेसेसरी कोई स्टेप्स लिखे होंगे तो कोई भी प्रोग्रामर उन स्टेप्स के लिए भी जब आप कंप्यूटर प्रोग्राम लिखेगा, इंस्ट्रक्शंस लिखेगा, तो आपका जो प्रोग्राम होगा कंप्यूटर प्रोग्राम वो अननेसेसरी लेंथी हो जाएगा और उनका कोई फायदा भी नहीं होगा। लिहाजा हर एल्गोरिथम के अंदर कंसाइजनेस और कंपैक्टनेस का एक एलिमेंट होना चाहिए। फॉर्मल एल्गोरिथम्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एल्गोरिथम को हम दो मुख्तलिफ तरीक़ों से लिख सकते हैं, एक फॉर्मल मेथड है और दूसरा इनफॉर्मल मेथड है। तो फॉर्मल एल्गोरिथम्स को लिखने के लिए हम कौन कौन सी कन्वेंशंस यूज़ करते हैं उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप एक रिजर्व वर्ड यूज़ करते हैं इनपुट, जब भी आपने किसी भी वैल्यू को मेमोरी लोकेशन में स्टोर करना हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन है x और इसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर करनी है 5, तो कोई भी वैल्यू आपने इसमें स्टोर करनी है, इनपुट करनी है, तो आप लिखेंगे इनपुट, इसके लिए आप यूज करेंगे इनपुट x। तो इनपुट जो है एक रिजर्व वर्ड है, एक निमोनिक है, जिसके वो हम इसलिए यूज करते हैं ताकि आप किसी भी मेमोरी लोकेशन के अंदर वैल्यू को क्या कर सकें, स्टोर कर सकें। इसी तरीके से किसी भी मेमोरी लोकेशन की वैल्यू को अगर आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करना हो तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, रिजर्व वर्ड यूज करते हैं प्रिंट। जैसा इस वेरिएबल x की वैल्यू को अगर आपने प्रिंट करना है तो आप लिखेंगे प्रिंट x। असाइनमेंट के लिए आप एरो सिंबल यूज करते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने इसमें कोई एक कांस्टेंट वैल्यू स्टोर करनी है 5, या आपने इस मेमोरी लोकेशन को इनिशियलाइज करना है किसी भी वैल्यू के साथ, तो उसके लिए आप कौन सा सिंबल यूज करेंगे, एरो। तो अब ये जो 5 है इसकी ये वैल्यू 5 असाइन हो रही है इस मेमोरी लोकेशन x को। तो असाइनमेंट के लिए हम जो कन्वेंशन यूज करते हैं वो है एरो सिंबल। तो कहने का मकसद ये हुआ कि हम डिफरेंट सिंबल्स यूज करते हैं, जैसा इनपुट हो गया, प्रिंट हो गया, एरो सिंबल हो गया। इसी तरीके से इफ एंड इफ जो है, इफ एंड इफ जो है हम किसके लिए यूज करेंगे, जब भी हमने कोई कंडीशंस लगानी हो, डिसीजन मेकिंग करनी हो, किसी भी मेमोरी लोकेशन के ऊपर आपने कोई कंडीशन लगानी है या कोई आपने डिसीजन मेकिंग करनी है, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, इफ और एंड इफ, ये दो रिजर्व वर्ड है या सिंबल्स है, इनको आप यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसा मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दे देता हूं, आपने चेक करना है इफ x इज लेस और इक्वल टू 10 देन perform some statements and then and if, and then and if। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये तमाम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये पूरा ब्लॉक स्किप होके
कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इफ और एंड इफ जो है वो कंडीशंस को चेक करने के लिए या डिसीजन मेकिंग के लिए। इसी तरीके से अगर आपने लूप एग्जीक्यूट करनी हो तो उसके लिए आप फॉर एंड फॉर, वाइल एंड वाइल, ये दो जो है आप सिंबल्स यूज करेंगे। फॉर जो है वो भी लूप के लिए यूज होता है और वाइल भी जो है वो भी लूप के लिए यूज होता है। तो आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट में, लूप्स दो तरह की होती हैं, डिटरमिनेंट लूप होती है और दूसरी कंडीशन बेस्ड होती है, जिसमें आप कंडीशन को चेक करके लूप की रेपिटेशंस परफॉर्म करते हैं। तो जब किसी कंडीशन की बेस पर आपने करना हो तो उसके लिए आप वाइल यूज करेंगे, और अगर आप डिटरमिनेंट लूप यूज करना चाहते हैं, आपको पता है कि कितनी दफा नंबर ऑफ रेपिटेशंस आपने पहले से, आपको इन एडवांस पता है कि कितनी दफा आपने रेपिटेशंस परफॉर्म करनी है, तो उसके लिए आप फॉर एंड फॉर भी आप यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अरेज को रिप्रेजेंट करने के लिए आप सिंबल्स यूज करेंगे, ये ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स आप यूज करेंगे। आप ये कैसे आप यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट? इससे पहले आप वेरिएबल लिखेंगे और वेरिएबल के फौरन बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने वो सबस्क्रिप्ट लिखने या इंडेक्स वेरिएबल लिखने, जैसा यहाँ पर मैंने आई यूज किया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ए आई जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अरे वेरिएबल को। तो अरे वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सी कन्वेंशन यूज करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट्स। जिस तरह कि आपको मैंने बताया है कि पहले अरे का नेम लिखेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखेंगे और उसके अंदर आप जो है उसका सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स वेरिएबल लिखेंगे। अच्छा देखिए, जब भी आप कोई एल्गोरिथम लिखेंगे, फॉर्मल एल्गोरिथम, उसको आपने कोई एक नेम देना है और नेम के फौरन बाद आप जो है आप थोड़ी सी उस एल्गोरिथम की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन इसलिए लिखी जाती है ताकि आप बता सकें कि उस एल्गोरिथम ने कौन से एक्शंस परफॉर्म करनी है, कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं, उसको आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। यानी जब भी आपने फॉर्मल एल्गोरिथम लिखना हो तो उसको आप एक नेम असाइन करेंगे। हर एल्गोरिथम का एक नेम होगा और नेम लिखने के फौरन बाद आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप वो सारे टास्क थोड़े थोड़े करके एक्सप्लेन करेंगे जो कि आपने उस एल्गोरिथम में परफॉर्म करनी है। और डिस्क्रिप्शन के फौरन बाद, अच्छा डिस्क्रिप्शन को आप जो है हमेशा जो है वो कर्ली ब्रेसेस में आप क्लोज करके लिखेंगे। यानी जब भी आपने कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी उसको आप कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे। इसी तरीके से जब आपने ब्लॉक स्ट्रक्चर बनानी हो किसी भी एल्गोरिथम में, ब्लॉक का मतलब ये है कि जैसे आपने मोर देन वन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना हो, ब्लॉक स्ट्रक्चर बनाना हो, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? इंडेंटेशन करते हैं, इंडेंट्स यूज करते हैं। और बाज लोग जो है वो कर्लीज भी यूज करते हैं ब्लॉक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसा कि यहाँ पर अभी मैंने लिखा था, इफ x is less or equal to 10 then statements and if। तो यहां पर देखिए मैंने इंडेंटेशन यूज की है। इंडेंटेशन का मतलब ये है कि अगर इफ और ये एंड इफ को मैंने यहां पर लिखा है तो थोड़े से गैप देकर एक टैब या दो टैब्स का गैप देकर आप बाकी उस इंस्ट्रक्शंस को लिखेंगे जो कि इस इफ और इफ एंड इफ के दरमियान आप क्या करना चाहते हैं? इंक्लूड करना चाहते हैं। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो पूरा ब्लॉक क्या हो जाएगा? स्किप हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है कि अगर आपने ब्लॉक स्ट्रक्चर बनाना हो तो इंडेंटेशन यूज करें। यानी अगर आपने इफ एंड इफ इधर लिखा है मतलब तो उसका थोड़ा सा गैप देकर, एक टैब का गैप देकर आप जो है बाकी इंस्ट्रक्शंस को लिखेंगे। या इसका दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो है उसके लिए बाज लोग क्या करते हैं? कर्लीज भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर को इंक्लूड करने के लिए यहां पर वो कर्लीज यूज करते हैं, कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इस कर्लीज के दरमियान जितनी भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होंगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये तमाम इंस्ट्रक्शंस स्किप होकर कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर ट्रांसफर हो जाएगा।
तो ये कुछ कन्वेंशंस है, मतलब फॉर्मल एल्गोरिथम को लिखने के लिए आप इन कन्वेंशंस को फॉलो करके आप जो है फॉर्मल एल्गोरिथम को लिखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी आप कोई एल्गोरिथम लिखें उसको एक एलिगेंट जो है आप कोई नेम असाइन करें, यानी जो नेम आप असाइन करेंगे वो मीनिंगफुल होना चाहिए। वैसे ही कोई आप नेम असाइन मत करें। फॉर एग्जांपल अगर आपने अरे के एलिमेंट्स को ऐड करना है तो आप उसमें एल्गोरिथम का नाम क्या यूज करें, सम यूज करें, यानी मीनिंगफुल किस्म का नेम होना चाहिए। और हमेशा नेम के बाद जो है आप थोड़ा सा उस एल्गोरिथम को डिस्क्राइब करें ताकि रीडर को समझ आए कि ये एल्गोरिथम किस लिए लिखा जा रहा है। बाज़ लोग उस डिस्क्रिप्शन में ये भी करते हैं कि जो आप मेमोरी लोकेशंस यूज कर रहे हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं कि इस मेमोरी लोकेशन का मकसद क्या है, ये क्यों यूज की जा रही है, या उसकी टाइप क्या होगी, यानी उसमें इंटीजर डेटा स्टोर होगा, फ्लोटिंग डेटा स्टोर होगा, कैरेक्टर डेटा स्टोर होगा, उसका पर्पस क्या है, उसकी टाइप क्या है, उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखें एक एग्जांपल लेते हैं फॉर्मल एल्गोरिथम की। इससे देखिए सबसे पहले मैंने एक रिजर्व वर्ड यूज किया है, इसको कैपिटल में लिखा है एल्गोरिथम, और फिर एल्गोरिथम को एक नेम दिया है, यानी आप कैपिटल अल्फाबेट्स में लिखे एल्गोरिथम, उसके आगे थोड़ा स्पेस देकर एल्गोरिथम को नेम असाइन करें। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आप फॉर्मल एल्गोरिथम लिखते हैं उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो रूल्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप कैसे लिखेंगे और कौन कौन सी सिंबल्स या सूडो आप कौन कौन सी सैंपल्स यूज करेंगे या किस तरीके से आप सूडो लैंग्वेज यूज करेंगे फॉर्मल एल्गोरिथम्स को लिखने के लिए। तो सबसे पहले देखिए मैंने लिखा है रिजर्व वर्ड एल्गोरिथम, फिर स्पेस देकर यहाँ पर उस एल्गोरिथम को नेम दिए है। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना मैंने उस एल्गोरिथम को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है। कैसे देखें, दिस एल्गोरिथम विल ऐड द वैल्यूज इन अरे ए ऑफ n लोकेशंस, यानी अरे का नाम हमारे पास ए है, अरे के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ लोकेशंस होंगी n मीन साइज ऑफ अरे। आई यहाँ पर हमारे पास लूप काउंटर है जिसको मैं 1 से इनिशियलाइज करूंगा। सम जो है ना एक कम्युलेटिव काउंटर है, एक ऐसा वेरिएबल है जो कि कम्युलेटिव काउंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको जो है मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, 0 से इनिशियलाइज करूंगा। और बेसिकली सम जो है वो अरे के एलिमेंट्स के सम को कंटेन करेगा। अब यहाँ पर देखें सबसे पहले मैंने एक लूप एग्जीक्यूट करके अरे के अंदर वैल्यूज को इनपुट किया। आई की फर्स्ट वैल्यू 1 होगी तो A1, यानी अगर ये अरे है A तो फर्स्ट लोकेशन में डेटा स्टोर होगा, फिर सेकंड लोकेशन में डेटा स्टोर होगा, फिर थर्ड लोकेशन में डेटा स्टोर होगा, इनपुट होगा, फोर्थ लोकेशन में डेटा इनपुट होगा, आखिर में nth लोकेशन में डेटा इनपुट होगा। तो इनपुट जो है अभी मैंने आपको बताया था कि अरे के अंदर वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम यूज करेंगे। सम को मैंने 0 से इनिशियलाइज किया है कम्युलेटिव काउंटर को, और उसके बाद मैंने अरे के एलिमेंट्स को क्या किया है, ऐड किया है। कैसे, सबसे पहले A1 सम के साथ ऐड होगा। अब सम जो है एक वेरिएबल है जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज किया, सबसे पहले ये वैल्यू इसके साथ ऐड होगी। लेट्स सपोज इसमें 10 पड़ा है तो 0 + 10 कितना हो जाएगा, 10। अब नेक्स्ट टाइम जब i की वैल्यू 2 होगी तो ये वैल्यू लेट्स सपोज इसमें 5 है तो 5 इस 10 के साथ ऐड हो जाएगा, तो इस सम के अंदर 15 आ जाएगा। इसके बाद जब i की वैल्यू 3 होगी, लेट्स सपोज इसमें 8 वैल्यू जो पड़ी हुई है वो है 8, तो 15 के साथ 8 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 23 हो जाएगा। इस तरीके से ये nth लोकेशन तक जाएगा और तमाम वैल्यूज ये तमाम वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और रिजल्ट आखिर में किस में आ जाएगा, वेरिएबल सम में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने लूप को टर्मिनेट किया एंड फॉर से। जब रिजल्ट आ जाएगा सम के अंदर, उस रिजल्ट को मैंने स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है तो उसके लिए मैंने सिंबल यूज किया है या रिजर्व वर्ड यूज किया है। कौन सा, प्रिंट सम। इसके अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। अब मेरा एल्गोरिथम खत्म हो चुका है तो उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, एग्जिट। मैंने आपको बताया था एल्गोरिथम की प्रॉपर्टीज में एवरी एल्गोरिथम शैल टर्मिनेट एट सम स्टेज, तो यहाँ पर आके जो है वो एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है फॉर्मल एल्गोरिथम की। इनफॉर्मल एल्गोरिथम्स, अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि इनफॉर्मल एल्गोरिथम्स को कैसे लिखा जाता है। मैंने आपको बताया था कि इनफॉर्मल एल्गोरिथम्स में हम नेचुरल लैंग्वेज यूज करते हैं और कोई स्पेसिफिक रूल्स फॉलो नहीं करते एल्गोरिथम को लिखने के लिए।
यहाँ पर देखें मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं एल्गोरिथम के। सबसे पहला स्टेप वही अरे के एलिमेंट्स को मैं सम करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने पहले फॉर्मल एल्गोरिथम लिखा था, अभी मैं उसके लिए इनफॉर्मल एल्गोरिथम लिखता हूँ। देखिए पहला स्टेप मैंने लिखा है स्टोर वैल्यूज इन अरे ऑफ n लोकेशंस, यानी सबसे पहले आप अरे के अंदर, अगर एक अरे के अंदर n लोकेशंस है तो उनके अंदर वैल्यूज को स्टोर करें। पहला स्टेप मैंने ये लिखा है। उसके बाद मैंने लिखा है कि लूप इंडेक्स को i से, लूप इंडेक्स हम यहाँ पर कौन सा यूज करें, i, उसको 1 से इनिशियलाइज करें और सम को हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं। एक्सेस ए आई की वैल्यू क्या होगी 1, सबसे पहले 1 होगी, उसके बाद उसको ऐड कर देंगे सम के साथ, फिर इंक्रीमेंट इसी के साथ, आप इसी के साथ लिख दें या एक अलग से स्टेप लिख दें, इंक्रीमेंट आई को इंक्रीमेंट करें तो आई की नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के बाद 2 हो जाएगी। अब फिर एक्सेस करेगा a2 को और उसको सम के साथ ऐड कर देगा, फिर i को इंक्रीमेंट कर देगा, i की नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, उसको एक्सेस करेगा और उसको सम के साथ ऐड कर देगा। और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, जब तक एंड ऑफ अरे उसको नहीं मिल जाता। जब एंड ऑफ अरे मिल जाए तो जितनी वैल्यूज उसने सम की हैं उनको डिस्प्ले कर दे और फिनिश कर दे। अगर एंड ऑफ अरे नहीं है तो ये बार बार क्या जाएगा, स्टेप नंबर 3 पर जाएगा, यानी अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करेगा। सबसे पहले उसने देखे A1 फर्स्ट लोकेशन को एक्सेस किया था, उसको सम के साथ ऐड किया था, उसके बाद i में इंक्रीमेंट किया था तो ये A2 बन जाएगा। ठीक है जी, एंड ऑफ अरे अगर मिल गया तो स्टॉप कर देगा और रिजल्ट को डिस्प्ले करके फिनिश कर देगा, अदरवाइज स्टेप नंबर 3 पर जाएगा। अब क्या करेगा, उसी A2 को एक्सेस करके क्या करेगा, सम के साथ ऐड करेगा, उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा i में, 3 आ जाएगा i में। अगर एंड ऑफ अरे मिल गया तो स्टॉप कर देगा और रिजल्ट को डिस्प्ले करके यानी सम को डिस्प्ले करके फिनिश कर देगा, अदरवाइज कौन से स्टेप पर जाएगा, स्टेप नंबर 3 पर जाएगा। अब A3 को एक्सेस करेगा और सम के साथ ऐड कर देगा और रिजल्ट भी हमारे पास साथ साथ सम में स्टोर होता जा रहा है। तो आखिर में सम में क्या हो जाएगा, तमाम अरे का सम आ जाएगा। जब एंड ऑफ अरे मिल जाएगा तो वो स्टॉप करके रिजल्ट को डिस्प्ले कर देगा, अदरवाइज ये बार बार अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करके उसको ऐड करता रहेगा और लूप इंडेक्स को 1 बाय 1 क्या करता रहेगा, इंक्रीमेंट करता रहेगा। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है इनफॉर्मल एल्गोरिथम की। जबकि पहले जो हमने लिखा था वो फॉर्मल एल्गोरिथम लिखा था, उसमें आपने देखा था कि हमने सर्टेन कन्वेंशंस को फॉलो किया था, सूडो लैंग्वेज को फॉलो किया था, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके एल्गोरिथम को लिखा था। लेकिन यहाँ पर हमने बगैर किसी रूल्स को फॉलो किए, किसी स्पेसिफिक सूडो लैंग्वेज को यूज किए बगैर नेचुरल लैंग्वेज में तमाम इंस्ट्रक्शंस को लिखे है और एल्गोरिथम के स्टेप्स को क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। बस।